presentation. वैभव सर, सर का प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो पा रहा है, आपकी तरफ से परमिशन रिक्वायर्ड होगी शायद। सर परमिशन तो मैंने दे दिया। दे दिए। यस। एक सेकेंड। बाकी पार्टिसिपेंट्स अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। Yeah, एक मिनट। I'll come. Once I exit and then come back again. कल डिस्कस करेंगे इसको। सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो दोबारा से रिज्वाइन हो रहे हैं। एक मिनट। यस। पार्टिसिपेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग थोड़ा सा डिग्निटरीज का वैल्यू दीजिएगा। अपने माइक को म्यूट करके रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ जानना चाहते हैं आप, तो वेलकम है। आप अपना माइक म्यूट करके अपना नाम बताते हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, your slide is visible now. Are you able to see my screen? Yes, sir. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me. Are you able to listen to me? Yes, sir. Are Sir, you able you to are listen to me? yes, sir. You are audible, and your screen is also visible on my screen. Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आ रही है सर।
So screen is, are you able to see my screen? Okay. So now you are able to listen my screen, my voice, and you are able to see my screen. So Yes. my topic is on data communication and network, enhancing efficiency of managed protocols. So basically it is an advanced topic. People can do the research on this topic also, because my work is on how to design the protocols. यानी अगर आपको कोई नया protocol design करना है, protocol means method how to send the data from source to destination. Basically, this is the topic of the discussion. But I'll start with a very simple things. अगर हम यहाँ तक जाना चाहते हैं तो मेरे पास कितना टाइम है? I don't know. Vaibhav, how much time we have? 1 hour. Vaibhav, how much time I have? 1.5 hours, sir. 1.5 hours, sir. Chaliye, we can start now. If I talk about what is computer network, it is a very simple thing, but many people are not able to define it correctly, because computer network connects two or more autonomous computers की बात होती है यहाँ पर. Autonomous का मतलब क्या है कि दो independent systems, ऐसे systems नहीं जिनके अंदर कोई कैपेबिलिटी ना हो. ऐसे भी नेटवर्क्स होते हैं जिसमें कि स्क्रीन और सिर्फ स्क्रीन ही शेयर होता है, बाकी कुछ शेयर नहीं होता है. अगर हम नेटवर्क की बात करें तो टू इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सिस्टम विच कैन वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क. जैसा कि आप कई बार रेलवे स्टेशन पर जाएं और टिकट बुकिंग सिस्टम पर जाएं तो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर पूरा सिस्टम नहीं होता है, ओनली स्क्रीन इज देयर एंड अ कीबोर्ड. उसकी वजह से बस वो लोग कनेक्टेड हैं किसी सर्वर से और उनके पास कोई तरीका नहीं है कुछ और करने का. जब तक सर्वर ऑन है दे आर वर्किंग, इफ द सर्वर इज डाउन देन इट इज दे कैन नॉट वर्क. तो उसका मतलब क्या हुआ? दे आर नॉट बेसिकली ट्रू नेटवर्क. बेसिकली इट इज कॉल्ड थिन नेटवर्किंग कह सकते हैं या थिन क्लाइंट कह सकते हैं, जिनके पास अपनी खुद की कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बट दे आर एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर. इज इट ओके? Are you able to listen clearly, Vaibhav? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Audible. Anybody can give me the feedback? I am not able to understand. Are you listening or not? Sir, audible. Is people are listening or not? Sir, audible, properly audible. And also visible screen. People are listening or not? My voice is coming. Okay. The computers can be geographically located anywhere. It means when we are basically talking about the single system is basically gives you some facility how to do the work onto that. But when we are trying to share the data, share the resources, तो उस वक्त हमको उनको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेट में जब हम जाते हैं, मैं आगे जाके इंटरनेट के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन जब हम नेटवर्क की बात इसलिए करते हैं कि हमको दूसरा डेटा भी चाहिए हो सकता है जो मेरे पास नहीं है, तो उस केस में we are basically required to do the networks. Now I am trying to show you some of the components which are being used here for networking purposes. So now you are able to identify that there are different kind of equipment which are visible over here. This is called connecting devices. This is another hub and switches out there, and some systems are connected together. अब कनेक्ट करने का टोपोलॉजीज अलग तरह की होती हैं, कई बार अलग तरह से हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपली हमने उनको एक लाइन से कनेक्ट किया हुआ है. अब आपको जैसा कनेक्शन चाहिए हो वैसा भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. ये DSL और केबल और मॉडेम हो सकता है, बट यहाँ पर हम इनको राउटर से भी चेंज कर सकते हैं
और ये अगर हमको मल्टीपल कनेक्टिविटी चाहिए होती है तो वी रिक्वायर्ड सम स्विचेस और हब्स. Switches and hubs are different basically, they are not same, but we need this type of equipment or component when we try to connect many things in one place. उसको home network भी कह सकते हैं, और sometime in a small office we can use this type of connectivity. Now this is also type of network, but the change here is the technological change is there, because there is no connectivity at the end, because here there are laptops, and in the laptops these laptops are connected with the network with the help of the Wi-Fi or the wireless. They are wireless and they are connected with the wireless devices. So this is another kind of networks. Maybe आपने जो पहले देखा था वो वायर्ड नेटवर्क है और ये वायरलेस नेटवर्क है, क्योंकि एंड नेटवर्क जो है, एंड नोड जो है, दे आर नॉट यूजिंग दी एनी काइंड ऑफ वायर्स. बट जब बात आती है वायरलेस नेटवर्क की, तो डिवाइसेस आर चेंज. यहाँ पर जो चीजें थी वो यहाँ पर चेंज हो जाती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैन. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट व्हाट द लैन इज. इफ एनीबडी कैन वांट टू रिस्पॉन्ड व्हाट द लैन इज. Sir, local area network. Anybody has to say something about it? Local network. Sir, local network. LAN is basically local area network, but local area network होता क्या है, हमको ये समझ में आने की जरूरत है. लोकल एरिया, हम किसी को भी लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं कि एक छोटी सी जगह पर कुछ बना हुआ हो, 4 से सिस्टम कनेक्टेड हो. We can say that it is a local area network, but local area network can be said that it should not go beyond 1 kilometer. Basically the problem is LAN cannot have a limitation of 1 kilometer area. उसके बाहर अगर आप जाते हैं तो LAN नहीं होता, और LAN उसके आगे जा भी नहीं सकती. That is technological limitations भी हैं. तो हमको जब भी लैन एक्सटेंड करनी है तो हमको सोचना पड़ेगा कि लैन हमको कैसे एक्सटेंड करनी है beyond 1 kilometer, because the devices are different for different type of situations. Local area networks of computers that are in the same physical location such as home or building, but home or building का मतलब ये है कि ये limitations of 1 किलोमीटर के बियॉन्ड नहीं जा सकते. यूजुअली कनेक्टेड यूजिंग ईथरनेट. एक केबल होती है जिसको हम ईथरनेट केबल कहते हैं, जिसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस केबल देयर इज वन कनेक्टर व्हिच इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, a standard on how computers connected over the shared media which is called a cable. मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ से. जहां पर भी किसी को ऐसा लगे कि कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए, दे कैन जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल तक लेके जाना है. MAN, that is called metropolitan area network, which is bigger than the LAN. LAN का कैपेबिलिटी या लिमिटेशंस जो थी वो 1 किलोमीटर की थी, बट MAN की जो लिमिटेशंस है या जो कैपेबिलिटी है वो करीब अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर के आसपास है. तो beyond, if you want to go beyond 1 kilometer, so you have to change the devices to MAN, and the MAN can go up to 20 किलोमीटर एरियाज के अंदर आपको नेटवर्किंग वो करने देता है और आपको डिवाइसेस को लोकेशंस दे सकता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ लैंड विद द सेम ज्योग्राफिकल एरिया. फॉर इंस्टेंस अ सिटी, अगर आपको एक सिटी वाइड नेटवर्क करना है तो आपको जाना पड़ेगा मैन के ऊपर. इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लोकेटेड इन डिफरेंट साइट्स विद इन अ large physical area such as a city. MAN often act as a high speed networking through not as fast as LAN. LAN जो है फास्टर है, और MAN क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो हमको थोड़ा सा डिवाइसेस भी चेंज हो जाती हैं, तो मे बी इट इज नॉट एज फास्ट एज LAN. MAN can define is a group of computers and network devices connected together within large physical area. जो कि कई बार कंपनीज होती हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर एक ही सिटी में उनके पास 2-3 लोकेशन है, एक हेड ऑफिस है, एक कंपनी है, एक वर्क ऑफिस है, तो वो लोग इस तरह के लोग जो है मैन को ऑप्ट करते हैं. दे आर कनेक्टेड, दे आर डिफरेंट लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर. You can say that this is kind of a figure, a diagram shows that how the MAN works.
तो आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दिस इज अनदर व्यू ऑफ मैन। एक सिटी के अंदर अगर मैन अगर वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा, वो कुछ इस तरह से वर्क करेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। Now when it is wide area network, which is known as now which can be said as internet, network of networks or wide area network, जब हम इसको बढ़ाते जाते हैं, when we covered the whole universe, then it becomes the WAN. It is example of WAN is internet. All computers are connected together in the form with the some technologies, and it is called a WAN, or we can say it is a internet. Is it okay? Now we are talking about wireless network, a group of interconnected nodes that exchange information and shared resources through a wireless transmission medium. जब हम वायर के बिना अगर हम कुछ ट्रांसमिशन या कनेक्शन कर पाए, that kind of network is known as wireless network. Now the types of wireless network which is available, or which you can see or which you can find, is PAN. PAN is very small network which is called personal area network, which is being used for the health purposes. Wireless LAN, जो LAN मैंने आपको बताया, वायरलेस LAN की भी लिमिटेशंस वही है। ऐसा नहीं कि वायरलेस अगर हमने कर दिया तो लिमिटेशंस कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी। वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात भी हो रही है। ब्रॉडबैंड जो आप लोगों को वायर्ड या आपको फाइबर से मिल रहा है घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर, वायरलेस ब्रॉडबैंड भी आ रहे हैं जो कि RF पे चलते हैं, और वो आपके डिवाइसेस आर डिफरेंट, और RF टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड्स आर वर्किंग बेटर देन दी वायर्ड वन, क्योंकि उनको कोई भी कनेक्शन या डिसकनेक्शन होने का कोई खतरा नहीं होता। वायरलेस WAN एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव के थ्रू भी यू कैन कनेक्टेड थ्रू दी WAN, एंड सेलुलर नेटवर्क्स भी जो है वो सिम के बेस के ऊपर भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है। Characteristics of wireless WAN covers a large geographical area. Circuits provided by the common carrier consist of interconnected switching nodes. Traditional WAN provides modest capacity, यानी पहले जो थी वो बहुत कम कैपेसिटी होती थी, 64,000 BPS कनेक्ट कॉमनली यूज करते थे। बिजनेस सब्सक्राइब यूजिंग TL services 1.54 Mbps, which was very less. Higher speed wireless WANs use satellite and it's of Mbps common. तो क्या होता है कि जो वायरलेस सैटेलाइट के थ्रू जो आपको मिलता है वो भी बहुत स्लो नेटवर्क होते हैं। Now, like WANs, wireless LAN interconnect a variety of devices and provides a mean for information exchange amongst ट्रेडिशनल वायरलेस LAN। हम हाइब्रिड टाइप मोड का भी एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। देयर इज सम सिस्टम व्हिच आर वायर्ड कनेक्टेड एंड देयर आर सम सिस्टम व्हिच आर वायरलेसली कनेक्टेड। ट्रेडिशनल वायरलेस LAN प्रोवाइड्स data rates of 1 to 20 Mbps, which is not even very high. High speed wireless LANs provide a data rates of 100 Mbps even, or even more. Standard for wireless LANs are Wi-Fi. अभी तो हम लोग Wi-Fi use कर रहे हैं। Newer technologies are also coming in for the wireless type of networks, which is more faster than the Wi-Fi. Characteristics of wireless LANs used to be a network with a high price, low data rates, occupational safety concern and licensing requirement भी हम कहीं भी कोई भी नेटवर्क कैसे भी नहीं बना सकते हैं। Problem have been addressed and popularity of wireless LAN has been grown rapidly. लेकिन आज की नीड के हिसाब से हमको वायरलेस LAN की नीड सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एवरीवेयर वी शुड बी कनेक्टेड। लाइक स्मार्ट रोड भी हम इसलिए मतलब पसंद करते हैं कि देयर इज a provision of Wi-Fi. LANs and WANs, scope of LAN is smaller, ये तो हमको पता है, and LAN is interconnected devices within a single building or cluster of a small area, जो कि मैंने आपको define किया हुआ है, that is 1 kilometer. LAN usually owned by organization that owns the attached devices. For WAN, most of the network assets are not owned by the same organization.
वैन क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड की जब बात होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोई एक चीज, एक आदमी या एक कंपनी नहीं उसको ओन करती है. Different countries have infrastructure to connect their systems and their devices so that the data can be exchanged. And internal data rate of LAN is much greater क्योंकि हमारी जो LAN है वो बहुत faster चलती है apart from other MAN and WANs. नीड ऑफ वायरलेस मैन, यानी कई बार हमको लगता है कि जो मैन है, जो वायरलेस लैन को तो आराम से हम सोच सकते हैं, लेकिन मैन के बारे में क्या सोचें कि अगर 20 किलोमीटर का एरिया है, अब हम इसको कैसे वायरलेस बनाएं. ट्रेडिशनल पॉइंट टू पॉइंट एंड स्विच नेटवर्क टेक्नीशियंस यूज्ड इन वैन्स आर इनएडिक्वेट फॉर गिविंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी कई बार नीड्स होती हैं कि हमको ऐसे एरियाज के अंदर या बड़े एरियाज के अंदर वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क की जरूरत पड़ती है. नीड ऑफ हाई कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट ओवर लार्ज एरिया ऑफ नेटवर्क की जरूरत पड़ती है. मैन प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कस्टमर इन इंडिपेंडेंट एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरियाज. लाइक हम कई बार ऐसा करते हैं कि कई बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पर कि जिसे हम वाईफाई लॉन्जेस कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं वो. कई बार रोड्स होती हैं जैसे स्मार्ट रोड्स, यानी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसमें आपको कंटिन्यूसली वाईफाई मिलता रहता है. तो ऐसे एरियाज में आपको मैन के इक्विपमेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो भी 1 किलोमीटर से ज्यादा एरिया को आप वायरलेस करोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि दैट कम्स इनटू द डोमेन ऑफ द वायरलेस मैन. लोअर कॉस्ट एंड ग्रेटर एफिशिएंसी कैन इक्विवेलेंट सर्विसेज फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी. तो कई बार हमको बड़ी कंपनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके हिसाब से हम चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस मैन्स और वाईमैक्स. तो वाईमैक्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वायरलेस मेट्रो मैन प्रोवाइड करती हैं. ये छोटे छोटे स्विचेस और छोटे छोटे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो आपको वायरलेस मैन प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर आपको वायरलेस मैन लगाना है तो आपको वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा. वायरलेस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जो कि स्टैंडर्ड हमें मिलते हैं जिनको हमको यूज करना चाहिए अपने या यूज कर सकते हैं while connecting our devices or systems or laptops by using Wi-Fi devices. PAN, LAN and MAN standards were defined by IEEE. IEEE is one standard and industrial forums हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि ये जो है इस तरह की चीज, ये जो इस तरह की जो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, वो IEEE ने डिफाइन करी हैं और उनके कुछ वेरिएंट्स उन्होंने बताए हैं जिसके अपने अलग अलग फीचर्स हैं. वो वायरलेस LAN प्रोवाइड कर सकते हैं. LAN standard define media coding scheme frame from MAC protocol and other data link layer protocols. MAC protocol आप लोग समझते होंगे. MAC protocol is basically hardware address of any device, and data link layer is basically a layer which is being in the ISO OSI model, which is the second layer of the model. After the physical layer, there is a data link layer जहां पर के डेटा ट्रांसफर होता है. एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर वायरलेस पैन, ब्लूटूथ. अगर हमें वायरलेस पैन बनाना है पर्सनल एरिया नेटवर्क तो ब्लूटूथ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज विच इज 802.15. ये स्टैंडर्ड जो है ब्लूटूथ वेरी स्मॉल टाइप ऑफ नेटवर्क विद इन एरिया ऑफ 10 मीटर्स में भी, अगर उससे भी कम या उससे छोटा बनाना है या उसके आसपास का कुछ बनाना है तो आपको 802.15 स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा. वायरलेस लैन यूज करना है तो IEEE 802.11 A, B and G वेरिएंट्स इसके हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. ब्रॉडबैंड वायरलेस नेटवर्क जो है, जो ब्रॉडबैंड की लेवल यानी हाई, बहुत लॉन्गर लेंथ पे जाना है, IEEE 803.16. अगर हमको ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज क्रिएट करनी है वायरलेसली तो हमको ये वाला स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा. Wireless LAN uses wireless transmission medium in a local area in single cell configuration, multi-cell configuration. तो कई बार हमारा जो वायरलेस लैन्स होते हैं या वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं वो उनका जो बनाने का तरीका होता है, सिंगल सेल कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, मल्टी सेल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस लैन एडहॉक नेटवर्क्स भी हम बना सकते हैं. मैं आगे जाके एडहॉक नेटवर्क्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा. अब आप यहाँ पर ये देखिए कुछ सिंगल सेल वायरलेस लैन कॉन्फ़िगरेशंस हैं. ये पूरा का पूरे सब सिस्टम्स एक ही डोमेन के अंदर आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है दे आर बिकमिंग वन सेल, सिंगल सेल
वायरलेस आपने जोन बनाया हुआ है, यानी यहाँ पर जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है वो एक ही होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टी सेल्स हैं, जैसे हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी वायरलेस पे ही काम करता है। वायरलेस जब हम मोबाइल को लेकर के एक सिटी में चलते हैं तो यू आर हैविंग मल्टी सेल्स, क्योंकि एक एरिया में और जो भी ट्रांसमीटर है उसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, इसलिए हमको मल्टीपल सेल बनाने पड़ते हैं और सम टाइम्स सेल्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। अगर ओवरलैपिंग सेल्स ना होंगे तो शायद हमको ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है हाई स्पीड बैकबोन, अगर हमारी जो बैकबोन है वो हाई स्पीड को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये बैकबोन हाई स्पीड अगर नहीं हुई तो हमारा डेटा पूरा बॉटलनेक यहाँ आ जाएगी। तो ये एक जोन बना दिया उन्होंने, एक जोन ये बना दिया। अब इनको अगर कम्युनिकेट करना है तो वो उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि दोनों सिस्टम करीब में रखे हुए हैं तो आपस में बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये इनको बैकबोन यूज करनी ही पड़ती है जाने के लिए। Now you can come, now you see that here ad hoc LAN, यानी ad hoc LAN का मतलब क्या हो, there is no infrastructure। अभी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से सिस्टम कनेक्टेड दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर देखिए there is no infrastructure is there, systems are there and they are trying to connect with each other. This is called ad hoc। इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अपने आप ही एक दूसरे से कनेक्ट करे जाते हैं। और कोई, क्योंकि ये ad hoc नेटवर्क जो है ये सबसे इजीली क्रिएट किया जा सकता है और कहीं पे भी क्रिएट किया जा सकता है। आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस होनी चाहिए जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। Is it okay? Any questions till this time? Okay, sir. Participants, any questions? Any questions? अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास में है आप चैट के माध्यम से भी No questions, sir. लिख सकते हैं। फैक्टर टू कंसीडर फॉर वायरलेस लैन, क्या क्या, जब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत देखने की जरूरत पड़ती है जो हमें वायरलेस लैन बनाना हो। सेम एज एनी लैन, लैन क्या है कि लैन किसी भी मतलब टाइप का हो सकता है, लाइक इट मे बी वायरलेस लैन और इट मे बी वायर्ड लैन। लैन का टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, बट लैन इज लैन। एरिया लिमिटेशन सब दोनों केसेस में सेम है। हाई कैपेसिटी, शॉर्ट डिस्टेंस, फुल कनेक्टिविटी, broadcast capabilities should be there. Throughput, efficient use, wireless medium. Throughput में बाद में आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहा। Throughput क्या होता है? Number of nodes, 100 of nodes across multiple cell। जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो सेल्स हैं इसके अंदर एक ही सेल के अंदर मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। और जैसे कि हम ये देखें कि हम जहाँ रहते हैं या हम जहाँ यूज करते हैं अपने ऑफिस में मोबाइल यूज करते हैं, तो एक ऑफिस के अंदर 100-200 मोबाइल, 250 मोबाइल, तो वो एक ही सेल में कवर हो सकते हैं। तो एक सेल में मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं। आई वांट टू से दिस। नंबर ऑफ नोड्स 100, connecting of broadband LAN use control modules to connect the both type of LANs. Connections to backbone LAN use control modules to connect to the both type of LANs। तो हम तो both type of LAN को कनेक्ट करना हो तो जो बैकबोन मैंने आपको यहाँ बताया, which is very much required to connect different cells। Low power consumption, need long battery life of mobile stations। हर चीज को जो वायरलेसली कनेक्टेड है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बैटरी की, क्योंकि बैटरी इज बेसिकली कंज्यूम व्हेनेवर यू आर यूजिंग इट। और बैटरी और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमको जब वो यूज होता है तब उसकी भी पावर जाती है। तो ये हमको सबसे बड़ा एक इशू है, ये एक रिसर्च का पॉइंट है कि हाउ टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन इन द वायरलेस और द
wireless LANs or MANs, or maybe the ad hoc networks. A transmission robustness and security interfaces prone and easily ever drop. क्या है कि हमको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि रोबस्टनेस न हो, सिक्योरिटी हो, लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और आ रही है जो कि सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की आ रही है. Factors to consider for wireless LANs are collected network operation, 2 or more wireless LAN in the same area. कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि एक ही एरिया में हमको कनेक्टिविटी चाहिए. लाइसेंस फ्री ऑपरेशंस की बात होती है कि लाइसेंस फ्री क्या होता है, हैंड ऑफ क्या है, रोमिंग्स क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं. आई डोंट नो कि कोई अगर इसका रिस्पॉन्स करे मुझे कि मुझे इसके बारे में कुछ बोलना है तो मैं बताऊं हैंड ऑफ क्या है, रोमिंग्स क्या है, और हाउ इट वर्क्स मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. हैंड ऑफ मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जब हम जाते हैं तब उसको हम हैंडिंग ओवर और टेकिंग ऑफ वाली बात हम कहते हैं. और रोमिंग्स यानी जब आप एक मोबाइल को लेकर के किसी दूसरे सिटी में चले जाते हो, विच इज कॉल्ड रोमिंग, मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. बेसिकली इंटर सेल कम्युनिकेशन वाली बात यहाँ पर हो रही है. इसके बारे में डिटेल्स बहुत सारी हैं जिसको कि अभी शायद मैं भी कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ. डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जब भी डिवाइसेस आती हैं या जाती हैं आपको उनको अपने नेटवर्क में लेना और उसको लीव करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, एडिशन, डिलीशन एंड रीलोकेशन एंड सिस्टम विदाउट डिस्ट्रप्शन टू द यूजर. अगर कोई नोड नया आ रहा है या कोई नोड एग्जिस्टिंग वापस कहीं नोड नेटवर्क से बाहर जा रहा है तो ये जो एग्जिस्टिंग यूजर यूज कर रहे हैं उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ऐसा एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है. वायरलेस लैन एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, लैन एक्सटेंशंस. अब यहाँ पर जो मैंने आपको छोड़ दिया था कि 1 किलोमीटर के बाद क्या करेंगे, 1 किलोमीटर के बाद ये करेंगे कि दोनों एंड के ऊपर आप वायरलेस एक्सटेंशंस कर सकते हैं अपने लैन का, जो कि 20-25 मीटर तक मिल सकता है आपको मैक्सिमम. तो बेसिकली लैन का कॉम्बिनेशन यानी हाइब्रिड लैन अगर आप बनाते हैं, कुछ वायर्ड कुछ वायरलेस, तो यू कैन गो अप टू 1 किलोमीटर एंड मे बी 50 meters maximum. Cross building interconnection is also required. Nomadic access is required. Ad hoc networking जो है, जो मैंने आपको अभी बताई, वो सब चीजें इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं. एप्लीकेशंस लैन एक्सटेंशंस किस तरह से होंगे, सेव इंस्टॉलेशन ऑफ लैन केबलिंग. तो वहां पर केबल नहीं बना करके हम वहां पर एक्सेस पॉइंट लगा देंगे और एक्सेस पॉइंट से हम वायरलेस लैन आगे के लिए छोटी सी क्रिएट कर सकते हैं. इज reallocation and other modification to the network structure. Wireless LAN to replace wired LANs has not happened. In some environment, role of the wireless LAN क्या हो सकता है, building with a large open access. वहाँ पर हमको wireless LAN एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए दो बिल्डिंग के एंड्स के ऊपर हम वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं by the help of maybe RFID, maybe something else. Manufacturing plants, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग फ्लोर्स एंड वेयरहाउस, इस जगहों पर हम लैन एक्सटेंशन को यूज करते हैं. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में भी यूज कर सकते हैं. स्मॉल ऑफिसेज वेयर द वायर्ड लैन्स आर नॉट पॉसिबल, जहां पर कि हम बिल्डिंग में कोई डैमेज करना नहीं चाहते हैं, वहां पर हमारे लिए लैन एक्सटेंशंस काम करते हैं. मे ऑल्सो हैव वायर्ड लैन्स, सेंसर एंड satisfactory workstations can also be installed. Cross building interconnections क्या हो सकते हैं, connect LANs in a nearby building, point to point wireless links. Point to point connections are different type of connections. Connect bridges or routers. I think you must know what do you mean, what is the meaning of bridges and routers. दोनों का काम अलग अलग है. Routers are basically connecting two or more networks with each other, not a LAN per se. ब्रिजेस जो है वो भी आपको कई बार दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, या कई बार हम एक सिस्टम को भी एक ब्रिज बना सकते हैं. ब्रिजेस एंड राउटर्स आर बेसिकली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बिग नेटवर्क्स, यूजुअली टू इंक्लूड दिस एप्लीकेशन अंडर द हेडिंग ऑफ द वायरलेस लैन. तो ये चीजें जो है सब वायरलेस लैन के अंदर इंक्लूड करी जा सकती है और वायर्ड में भी करी जा सकती है.
ऐसा नहीं है कि ये वायरलेस के ही टॉपिक्स हैं। What is application nomadic access? Link between LAN hubs and mobile data terminals. अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप और नोटपैड कंप्यूटर्स, ये इस तरह की चीजें जो है आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। एनेबल एम्प्लॉइज रिटर्निंग फ्रॉम ट्रिप टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ए पोर्टेबल कंप्यूटर टू द सर्वर। ऐसा कुछ काम करना हो तो हमको ये सब चीजें करनी होती है। ऑल्सो यूजफुल टू एक्सटेंड एनवायरमेंट सच एज कैंपस और क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स। तो क्लस्टर और कैंपस और बिल्डिंग में हमको कभी चाहिए हो तो भी हम इस तरह की चीजें करते हैं। यूजर मूव अराउंड विद दी पोर्टेबल कंप्यूटर्स, कई बार हम लैपटॉप लेकर के हवा घुमा करते हैं तब भी हमको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। मे विश टू एक्सेस टू द सर्वर ऑन वायर्ड लैन, कई बार हमको वायर्ड लैन भी इसलिए जरूरत पड़ती है कि वी डोंट वांट डिसकनेक्टिविटी। वायर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क जो है वो मोर रिलायबल है रादर देन दी वायरलेस नेटवर्क्स। एप्लीकेशन ऑफ अडॉक नेटवर्क, अडॉक नेटवर्क किस तरह की आपको फैसिलिटीज या फंक्शन प्रोवाइड्स करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी हम पीयर टू पीयर नेटवर्क अगर समझते हैं तो पीयर टू पीयर का नेटवर्क का मतलब होता है दिस इज सर्वरलेस टाइप ऑफ नेटवर्क्स, जहां पर कोई भी सिस्टम सर्वर नहीं होता है। सब जो भी कनेक्टेड सिस्टम्स हैं दे आर हैविंग ऑन द सेम लेवल। नोबडी कैन डिक्टेट टू एनी अदर सिस्टम दैट यू हैव टू डू दिस, बिकॉज एवरीबडी हैज इट्स ओन कैपेबिलिटी। वो अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं और उनको क्या करना है वो भी जानते हैं। अगर किसी से डेटा चाहिए दे कैन रिक्वेस्ट फॉर दैट, बट नॉट ओनली, और जिससे डेटा चाहिए उससे मांग सकते हैं। बट व्हेन देयर इज ए क्लाइंट सर्वर टाइप ऑफ नेटवर्क, देयर इज ओनली सर्वर will provide the request, otherwise no other thing, nobody else can do that. Set up temporarily to meet some immediate need, और sometime एडहॉक के लिए एडहॉक नेटवर्क हम कभी इसलिए भी बनाते हैं कि कोई एडहॉक नीड, जैसे कई बार एक्सीडेंट्स हो गए कुछ ऐसी जगह पर रिमोट एरियाज में जहां पर कुछ डिजास्टर हो गया, जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जंगल है, तो वहां पर यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स एंड डू योर जॉब। Group of employees which each laptop or palm top in the business or close room meeting can also create their network, because they are having their devices, connecting devices in their hands, network to the duration of the meeting. Or sometime we are trying to do some meeting and meeting के दौरान हमको नेटवर्किंग करनी है तो हम उस क्लोज रूम के अंदर आपस के अपने सिस्टम्स और लैपटॉप्स और मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। Now see, multi-hop wireless connections क्या होते हैं? Multi-hop का मतलब क्या है कि there is not immediate to immediate यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ये वाला नोड है और लास्ट नोड को डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि बीच में दो नोड्स और हैं जो इसके डेटा को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। Are you getting my point? तो ये देखिए, ये जो रास्ता बना है, रूट बना है, ये इसका डेटा का रूट बना है। ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, बट ये सोर्स डेस्टिनेशन को नहीं जानता। बट ये क्या करेगा, इसको सिर्फ डायरेक्शन पता होती है कि मुझे डेटा किस डायरेक्शन में डालना है। वो डायरेक्शन के हिसाब से अपना इसको डायरेक्शन को डेटा दे देगा, और उसके बाद इसको ये पता है कि मेरा जो उसका जो जहाँ से डेटा आया है उसका रूट जो है वो आगे की तरफ है, वापस नहीं भेजेगा इसको, क्योंकि उसको ये पता है कि डायरेक्शन का आगे कोई फॉरवर्डिंग करनी है तो फॉरवर्ड कर देगा। और इसको भी पता है कि मुझे फॉरवर्ड करना है, इसको ये पता नहीं कि मैं लास्ट हूँ। जब इसको मिल जाएगा और इसको प्रोसेस कर लेगा, क्योंकि इसका एड्रेस जब डेटा चलता है तो उसका एड्रेस होता है उसके पास, उसके पास एड्रेस होता है कि मुझे डेटा को रोकना कहाँ पर है। जब इसके पास पहुंचेगा तो वो प्रोसेस करेगा, देखेगा ये डेटा मेरे लिए है तो अपने आप रख लेगा, आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा। नहीं तो फॉरवर्डिंग होती रहेगी और डेटा किसी को भी नहीं मिलेगा, और डेटा उसके पास आया भी और उसको पता नहीं चला डेटा मेरे लिए था और डेटा आगे निकल जाएगा। तो सोर्स डेटा जनरेट करता है और डेस्टिनेशन को डेटा पहुंचना है, तो बीच में अगर डिफरेंट नोड्स अवेलेबल हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी हॉप ट्रांसमिशन। इज इट ओके? एनी क्वेश्चंस? Very calmly and quietly you are listening. Participants, any questions? So the problem is this,
कि जब सोर्स ने डेटा भेजने के लिए सोचा था तो ये डेस्टिनेशन यहाँ अवेलेबल था, या ये बीच के 2 पॉइंट्स यहाँ अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही ट्रांसमिशन शुरू हुआ ये भाग गया बीच में से तीसरा वाला, तब क्या होगा? सॉरी, तब क्या होगा? एनीबडी वांट टू टेल मी क्या होगा उस केस में? थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा जवाब दें। तो भी आंसर देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आप वॉइस का प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स पे भी मैसेज This is called mobility problems, and the data will not be transmitted to the or sent to the destination. उस केस में डेटा ड्रॉप होगा, जिसे कहा जाता है पैकेट ड्रॉप। आर यू गेटिंग? इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि डेटा पैकेट ड्रॉप क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है। This is also basically you define that what is the quality of this service, जिसको हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक पैरामीटर है कि आपका ट्रांसमिशन की क्वालिटी पुअर है, क्योंकि डेटा निकलता है बट वो पहुंचता नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम मोबिलिटी की भी है कि मोबिलिटी होता क्या है कि जब हम ये नोड्स जो है फिक्स नहीं, अगर ये फिक्स हो गए तो उसका मतलब ये हुआ कि वायर्ड नेटवर्क है, और जब हम वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो ये इसको एक स्पॉट पर रखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल आप अपनी जेब में लेके घूमते हो, मोबाइल एक जगह ले जाके रख नहीं देते हो, घर में एक जगह रखा हुआ है लैंडलाइन की तरह। जब हम मोबाइल लेके घूमेंगे तो कभी वो रेंज में होगा, कभी वो रेंज में नहीं होगा। तो समटाइम यू आर गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम व्हेन यू आर calling to the person that the person is not reachable. Person is not reachable because this person is not available in the range. जब आपने कॉल करने की कोशिश करी थी या आपको पता है कि वो बंदा अवेलेबल है बट वो रेंज में नहीं है। और कई बार ये होता है कि जो बीच में मल्टी हॉप की बात जब हो रही है तो बीच वाली जो दो नोड्स है या एक नोड है, और इवन सम टाइम यही चला जाता है जिसको डेटा चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कोई डेटा आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता हो कि मेरे पास कॉल आने वाली है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने नेटवर्क पे रहूं तभी मुझे कॉल मिलेगी, तो मैं तब तक कॉल को नेटवर्क पे लेके बैठा रहूंगा मोबाइल को। आई एम हैविंग नंबर ऑफ टास्क टू डू, दैट इज व्हाट आई कैन मूव आउट, एंड दैट इज व्हाई this type of networks are vulnerable and not because ये एरिया ऐसा है जहां पर most of the researches are being done कि इसको हम कैसे मोर क्वालिटी इंप्रूव करें इस टाइप के नेटवर्क्स की। तो अभी समझ में आया व्हाट इज द इश्यूज ऑफ मोबिलिटी कॉज्ड बाय द मोबिलिटी। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay, sir? Yes, sir. Is it okay? Most moment, sometime different nodes are basically moving in a different directions and with a different speeds. Topologies changes frequently. अभी क्या था कि ये कुछ इस तरह का इनका ग्रुप था, आखिरी में जाके ग्रुप ऐसा हो गया। मान लो मुझे डेटा सिर्फ इसको भेजना था, इस डायरेक्शन में, इस तरह के अरेंजमेंट में ये हो सकता है यहाँ पहुंच गया हो, तो आपको देखना पड़ेगा अब आपका डेस्टिनेशन कहाँ पहुंच गया। तो डेस्टिनेशन इज ऑल्सो चेंजिंग, multi in between nodes is also changing the position. So there is a problem of sending the data from A to D because the topology is changing, the speed and the mobility of the nodes are changing. So in this type of network, it is very difficult to send the data and to receive the data. No cellular infrastructure, क्योंकि इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि किसी को दे दिया और आप उसको बोल दो भैया मैंने आपको दे दिया, जब वो आपके पास आ जाए तो आप उसको दे देना। Are you getting the point? कि हमने तो डेटा सोर्स से तो दे दिया किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर को दे दिया हमने, अब इसमें राउटर होता ही नहीं है। जब राउटर ही नहीं है तो हम राउटर को डेटा दे के करेंगे क्या? यहाँ पर राउटर है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ नोड्स हैं। नोड्स आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं और जिसको इंफॉर्मेशन जिसके लिए होती है वहां पर जाके और डाई हो जाती है, उसको मिल जाती है, फिर फॉरवर्डिंग और ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। तो दिस इज हाउ कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। मल्टी हॉप वायरलेस लिंक्स
डेटा मस्ट बी रूटेड वाया ए इंटरमीडिएट नोड, और इसमें जरूरी है कि अगर ये ए और डी के बीच में कम्युनिकेशन होना है तो ये दे कैन नॉट कम डायरेक्टली बिकॉज दे आर नॉट इन द रेंज ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनकी रेंज इतनी नहीं है कि ये आपस में बात कर लें। ऐसा नहीं है कि बात, अगर ये बात कर सकते हैं तो डायरेक्टली भेज देंगे, और नहीं कर सकते हैं तो उनको ये मजबूरी है कि बीच में दो लोगों को साथ में लेना पड़ेगा जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होगा। इज इट करेक्ट? Okay, sir. Participant, is there any query? All participants kindly listen. Is something, some technical issues is there, so please don't leave. Rizvi sir will again join us. So just 2 minutes. रिजवी सर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उस सर के कुछ काम आ गया, इशू हो गया। यस सर, वेट 2 मिनट्स। ये एक इंटरेक्टिव सेशन से पार्टिसिपेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्कॉलर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा टाइम है अपने डिसर्टेशंस की बात समझने के लिए। सर ने अभी जैसा आपको बताया है कि आप नेटवर्क पे भी अपना एमटेक का टॉपिक, थीसिस टॉपिक भी रख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बीटेक फाइनल ईयर एंड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, पीसी के स्टूडेंट्स, सीएक्स के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आप जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई क्वेरीज है तो आप ऑन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है आपकी तरफ से तो आप उसको चैट बॉक्स में भी लिख करके शेयर कर सकते हैं। आइदर होस्ट के साथ शेयर कर लें, ठीक है, या एवरीवन के साथ भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस को हम पुटअप करेंगे वहाँ पे। अभी तक जो कुछ भी बताया गया इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप अभी से ही चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस लिख के सेंड कर सकते हैं। सेशंस रिज्वाइन करते ही सर से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
हेलो सर, चले गए शायद यहाँ से, मेरे मतलब इस वाली लैब से तो निकल गए। हाँ हाँ भेज दीजिए। हाँ Are you able to see to it? हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए। Yes, sir. It is visible and audible. Can I go ahead? Yes, sir. Please. Can I go? No. Yes. Yes, Yes, sir. Why sir, you ad are hoc audible, networks? sir. हमको क्यों चाहिए ad hoc networks? Setting up of fixed access points and backbone infrastructures is not always viable. कई बार हमारे जो ऐसे इक्विपमेंट है वो खुद ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनकी वजह से नेटवर्क अपने आप ठीक काम नहीं करता है। कई बार राउटर्स जो है वो खराब हो जाते हैं। तो वायर्ड नेटवर्क के अपने कुछ अलग इश्यूज हैं, वाईफाई नेटवर्क के अपने कुछ अलग इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट बी प्रेजेंट इन दी डिजास्टर एरियाज ऑफ द वार एंड जोन्स, तो इसके लिए भी हम एड हॉक नेटवर्क को यूज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ रेडियोज एंड ब्लूटूथ रेंज जो है 10 मीटर के लिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपस में छोटा सा नेटवर्क खुद बना सकते हैं। डू नॉट नीड बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, आर इजी टू डिप्लॉय, यूजफुल व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एब्सेंट, डिस्ट्रॉयड और इम्प्रैक्टिकल, और कई बार हमको इन वजहों से एड हॉक नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। Many applications which can be run on this type of application are personal area network, जो मैंने बताया पैन, जो अपने हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं आप। सेल फोन्स, लैपटॉप, ईयरफोन्स एंड रिस्ट वॉचेस, ये अपने बॉडी के डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं जिनको कि आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो पैन एरिया में आते हैं। मिलिट्री इन्वायरमेंट्स, सोल्जर्स, टैंक्स एंड प्लांट्स, इसके लिए भी हम एड हॉक नेटवर्क बना सकते हैं। सिविलियन इन्वायरमेंट्स, टैक्सी, कैब नेटवर्क, मीटिंग, जूम, स्पोर्ट्स, स्टेडियम, बोट्स, स्मॉल एयरक्राफ्ट के अंदर हम भी ये एप्लीकेशन इस तरह के नेटवर्क यूज करते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू, पॉलिसाइजिंग एंड फायर फाइटिंग, इन चीजों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस इन मोबाइल एनवायरनमेंट, किस तरह के चैलेंजेस हैं जिनको हमको एड्रेस करने की जरूरत है। Limitations of the wireless network, packets lost due to a transmission error, ये मैंने आपको भी बताया था कि पैकेट लॉस होते हैं ट्रांसमिशन एरर्स की वजह से। वेरिएबल कैपेसिटीज की बात होती है लिंक्स की, क्योंकि हर लिंक एक जैसा नहीं होता। फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन और पैटर्न्स, लिमिटेड कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, ब्रॉडकास्ट नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। सम टाइम एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है, यानी जितने भी नोड्स हैं उस नेटवर्क में वो सबको डेटा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और पॉइंट टू पॉइंट, यानी जिसने सोर्स ने स्टार्ट किया और डेस्टिनेशन जिसको चाहिए, सिर्फ उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, बाकी कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉडकास्ट एंड द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। लिमिटेशंस इम्पोज बाय द मोबिलिटी, वो क्या मोबिलिटी में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होंगी। डायनेमिकली चेंजिंग टोपोलॉजीज, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि डायनेमिकली चेंज, हर मोबाइल एक दूसरे से दूर जा रहा है या करीब आ रहा है, इस केसेस में वो नए रूट ढूंढने पड़ते हैं फॉर सेंडिंग द डेटा। लैक ऑफ मोबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ द सिस्टम, और हमको पता नहीं होता जिसको हमको डेटा भेजना है वो तो अभी यहाँ तक कहाँ चला गया, वी हैव टू फाइंड इट आउट अगेन एंड अगेन। लिमिटेशंस ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर्स आर शॉर्ट बैटरी, और वो बार बार जब बहुत देर तक उनके पास चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो उनकी बैटरी में भी खत्म हो जाने का खतरा होता है। वो आपको नहीं मिल रहे हैं, उसकी कई सारे रीजन हो सकते हैं। लिमिटेड कैपेसिटीज भी हो सकती हैं, और जितना डेटा आपने इनको भेजा है हो सकता है वो पूरा डेटा यूज करने के लिए या अपने पास जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए उनके पास कैपेसिटीज नहीं होती। Effect of mobility on the protocol stack applications, new applications and adaptation, ये problems हो सकती हैं। और transportation, congestion and flow control, network addressing and routing, link, media access and handoff, physical transmission errors and interfaces.
ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द मोबिलिटी। अब यहाँ पर मैं आता हूँ राउटिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राउटिंग क्या चीज होती है? राउटिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड राउटिंग। बेसिकली हम लोग राउटिंग सिर्फ ये समझते हैं कि राउटर जो है सिर्फ डेटा आगे पीछे करता है, फॉरवर्डिंग इक्विपमेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट इक्विपमेंट है। वो ये देखता है कि जो दो लोग जो बात करना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टेस्ट या इफेक्टिव रूट निकालो और उस पर डेटा को सेंड करो। और हर राउटर के पास एक टेबल्स होती हैं विच इज कॉल्ड लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल, यानी राउटर के लेफ्ट हैंड पे क्या क्या है और राउटर के राइट साइड पे क्या क्या है। तो उसको ये पता रहता है कि मेरे राइट साइड इतने इक्विपमेंट है और मेरे लेफ्ट साइड इतने इक्विपमेंट है। डेटा जहां से आ रहा हो तो मुझे भेजना कहाँ है, तो सबकी कोडिंग रखता है कि मेरे पास कितने इक्विपमेंट्स हैं और मुझे किस साइड पर कितने इक्विपमेंट है, उनकी आईडीज क्या क्या है। अगर डेटा कहीं से आता है तो उसको ये पता है मुझे उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। A node makes a local choice depending on the global technology, or global technology is called IP. Distance vector and link state routing ये type of routings है। Distance vector and link state ये दो कुछ routing के नाम है। Both assumes router knows addresses of each neighbor। तो हमको सिर्फ क्या पता होता है कि हमको अपने नेबर यानी मेरे से इमीडिएट कौन है उसका नाम उसका पता होता है, उसके बाद उसके आगे कौन है आई डोंट नो अबाउट दैट, कॉस्ट ऑफ रीचिंग ईच नेबर। और हमको ये भी पता होता है कि मुझे वहां तक पहुंचने में कितना एफर्ट लगेगा। तो दो चीजें पता रहती है राउटर को कि मेरे इमीडिएट नेबर कौन है और वहां तक मैं वो चीज पहुंचाऊंगा तो कितना मुझे टाइम और रिसोर्सेज लगने वाले हैं। बोथ अलाउ द राउटर टू डिटरमाइन ग्लोबल राउटिंग इंफॉर्मेशन बाय टॉकिंग टू द नेबर्स। और हम सिर्फ नेबर से बात करके डेटा कहीं भी भेज सकते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग नोस कॉस्ट ऑफ ईच डेस्टिनेशन। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है कि उसको ये पता होता है कि नेटवर्क में कितने डेस्टिनेशन है और वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। लिंक स्टेट राउटर नोस एंटायर नेटवर्क टोपोलॉजी एंड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ। तो लिंक स्टेट ये क्या करता है कि उसको सब कुछ पता है कि कहाँ कहाँ कितना टाइम लगने वाला है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, और इसको क्या है कि पूरे नेटवर्क की रूट्स पता रहते हैं ये कहाँ से जाना है। तो अब आपको जैसा काम करना हो वैसा प्रोटोकॉल आप उठा सकते हैं और अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। एक एग्जांपल है, आई थिंक जब आप लोग रिसर्च करने जाएंगे तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी कि राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इसलिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसकी एंटिटी समझा दूं, बस मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है किस तरह का सिस्टम होता है। लिंक स्टेट राउटिंग एग्जांपल्स, फाइंडिंग अ पाथ फ्रॉम अ सोर्स टू द डेस्टिनेशन। इश्यूज क्या हो सकते हैं? फ्रीक्वेंट रूट चेंजेस, जो मैं आपको बताया कि अगर वो बीच के नोड जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो चले जाएं या डिस्टर्ब हो जाएं या मूव हो जाएं तो दिस कॉजेज वन प्रॉब्लम। अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द रूट चेंजेस मे बी मच स्मॉलर देन द ट्रेडिशनल नेटवर्क्स। तो हमारा जो नए टाइप के जो प्रोटोकॉल डिजाइन हुए हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है वो फास्टर चीजें होती हैं। रूट चेंजेस एंड लो बैंडविड्थ लिंक्स जो है वो आपके लिए कई बार काम नहीं करते हैं क्योंकि बीच में वो डेटा भेज नहीं पाते हैं और डेटा लॉस्ट हो जाता है। गोल्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डिक्रीजेस राउटिंग रिलेटेड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं कि जब कई बार ऐसा होता है जब ट्रांसमिशन नहीं होता है तभी प्रोसेसिंग चला करती है, वो चीजें हमको खत्म करने या कम करने की जरूरत होती है। ये भी एक एरिया ऑफ रिसर्च है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द ओवरहेड्स इन दी routing or the networks
फाइंड शॉर्टेस्ट रूट, ये भी एक एरिया है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालें जिससे कि हम एफिशिएंटली डेटा ट्रांसफर कर सकें। फाइंड स्टेबल रूट्स, और स्टेबल रूट्स भी हैं, आपको रूट शॉर्टेस्ट तो मिल जाते हैं, कई बार वो बहुत कंजेस्टेड होते हैं, तो डेटा विल टेक लार्जर टाइम टू रीच ओवर द डेस्टिनेशन। ये एक मोबाइल आईपी किस तरह के, मोबाइल आईपी यानी आईपीस किस तरह से एलोकेट होते हैं, वो एक डायग्राम है। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हैं और हायर एंड्स के हैं, तो अभी यहाँ पे भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये दिस अगेन रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। अब राउटिंग इन मैनेट, मैनेट मतलब मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, मैं थोड़ा सा इसके बारे में 10-15 मिनट और लूंगा क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी आई हैव कवर्ड 1 hour, but I will take 10 to 15 minutes more. Vaibhav, I am having time for some more time. Vaibhav? Yes, sir. Yes, sir. 10 minutes. 10. Now there are unicast routing protocol, जो unicast है, and many protocols have been proposed in unicast. Unicast means one to one. Some specifically invented for MANET के लिए बनाए गए। Other are adapted from protocol for wired networks. कुछ जो है वो network wired network protocols wired के लिए बनाए गए। No single protocol works well in the environment. और कोई भी ऐसा environment नहीं है जहां पर के single network चलता हो। कई बार डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है वो यूज होते हैं। स्टैंडर्ड एफर्ट्स इज IETF मैनेट मोबाइल IP वर्किंग इन द ग्रुप। राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स, रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स एंड हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स। प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स जो अपने आप ही बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ रिएक्टिव जो होते हैं वो अगर कुछ एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन के बेस पर कुछ काम करते हैं। हाइब्रिड जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल जो है वो प्रोएक्टिव है। मेंटेन राउट बिटवीन एवरी होस्ट पेयर ऑफ द पेयर एट ऑल टाइम। कई बार वो हर पेयर को का रूट निकाल के रखता है। बेस्ड ऑन पीरियोडिक अपडेट्स, हाई राउटिंग ओवरहेड इज रिक्वायर्ड। ये काम करने की वजह से क्या होता है, बार बार वो सबको देखता है और वहां से ये पता करने की कोशिश करता है सब लोग हैं कि नहीं है। तो ये काम जो कर रहा है एक्स्ट्रा, जब कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट वो अपनी टेबल्स को अपडेट करने के लिए जो काम इज कॉल्ड राउटिंग ओवर। एग्जाम्पल DSDV, एक DSDV करके एक राउटिंग है जिसको कि हम डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कहते हैं। determines route if and when it is needed. रिएक्टिव क्या होती है, जब आपने कहा कि मुझे डेटा भेजना है, ये बताओ कहाँ भेज, तब वो डिटरमाइन करेगा उन नोड्स के बीच में। सोर्स इनिशिएट्स रूट डिस्कवरी, और जब सोर्स जो होगा वो अपने इज ZRP जोन राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये जो है एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल ट्रेड ऑफ क्या होते हैं, जो प्रोटोकॉल है वो रूट हमेशा मेंटेन करके रखता है अपने पास। से डेटा आया उसने उसको भेज दिया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ पता है उसको। लिटिल और नो डिले फॉर द रूट डिटर्मिनेशन, तो उसमें रूट उसको पता रहते हैं तो उसको रूट ढूंढने में टाइम नहीं लगता। कंज्यूम बैंडविड्थ टू कीप रूट्स अपडेट, बट होता क्या है कि वो रूट पता करने के चक्कर में बहुत सारा डेटा जनरेट करता है और बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है। दिस कम्स अंडर द ओवरहेड्स एंड मेंटेन रूट्स व्हिच मे बी इवन डी यूज्ड।
और कई बार क्या होता है कि वो ऐसे भी रूट को मेंटेन करता है अपने टेबल्स में जिसको कभी यूज ही नहीं किया गया हो, या वो रूट कभी थे अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। रिएक्टिव जब हमें डिमांड आएगी तभी हम रूट डिस्कवर करेंगे। रूट नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉय फ्लोटिंग, फ्लडिंग, कई बार वो फ्लडिंग कर देता है कि भैया देख लो किसका है, ले लो। फ्लडिंग का मतलब ये है कि एवरीबडी विल गेट द डेटा इनटू द नेटवर्क एंड कंट्रोल ट्रैफिक में बी सम टाइम ब्रस्टी, और वो ब्रस्ट और उसकी वजह से नेटवर्क में बहुत सारे डेटा जनरेट होता है और वो डेटा जनरेट नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी कई बार देखा गया है। Which approach achieves a better trade-off depends on the traffic and mobility patterns। तो हमको ये चीजें देखना है कि हमको किस तरह का प्रोटोकॉल यूज करना है, प्रोएक्टिव यूज करना है या रिएक्टिव यूज करना है या हाइब्रिड अप्रोच यूज करनी है। ये हमको अपने नेटवर्क के काम के हिसाब से या एप्लीकेशन के हिसाब से वी हैव टू डिसाइड what type of protocol we have to use। should I go ahead or I should stop over? यहाँ से आपके काफी एडवांस चीजें शुरू होंगी जिसमें कि how to identify path and how to send the data, these are something like this। मुझे ऐसा लगता है कि I'll stop over here and I'll take some question answer from you। Anyone, any queries? Dear participants, आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। Yeah, please can Okay. Vaibhav ji, can you come down? Yes sir, yes sir। Everyone please on your camera। Vaibhav ji, yeah please। सर आई हैव अ डाउट। Okay, okay। सर आपने पूरी राउटिंग तो समझा दी पर आईपी एड्रेस Any नहीं question समझाई from नहीं the कैसे। audience? सर आई हैव अ डाउट। Or should I go ahead with the advanced topic? सर आई एम सर कैन यू हियर मी? Everyone please on your video camera for group photo। If not, then I think थोड़ा सा अगर जिसको रिसर्च के एरिया में इंटरेस्ट होगा वो टॉपिक उनको पसंद आएगा इसके आगे का। अदरवाइज ये मेरे ख्याल से एक जनरल मैंने ले लिया है। या प्लीज। Now I request to Professor Sonam ma'am for vote of thanks। Sonam madam, सोनम मैडम आप सुन पा रही हैं? अनुराग सर। हाँ वैभव। सर वो हाँ, सेशन सोनम मैडम अभी शायद सुन नहीं पा रही हैं। मैं पूरे एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैमिली की तरफ से अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से सुना एंड आई होप सर कि एमटेक के जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और आपके आज के लेक्चर से प्रेरित होकर के वो जो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स पर या अपने मैनेट के ऊपर भी अपना नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह पे भी अपने थीसिस के ऊपर वर्कआउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वैभव। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो। Yes, yes, yes. Sir, this is Pappu Sama. Sir, can we get this PDF?
पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में है, आप उसको यूज तो कर सकते हैं, मैं भेज दूंगा। At least we can revise from this, sir. चलिए, I'll try to send. Okay, Pappu, I will try to give the PDF, and if it is not possible from sir side, so I will provide the notes regarding this. नहीं Okay. मिल जाएगा, मैं आपको Sure, sir. कुछ और चीजें दे दूंगा या ये भी दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। Okay, sir. Okay, thank you Okay, very sir. much. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। ये वैसे बहुत बड़ी पीपीटी है मेरे पास, करीब करीब शायद 100 स्लाइड होंगे इसके अंदर। मैंने शायद अभी 1/4 यूज करी होगी या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इसमें एडवांस टॉपिक तक मैंने लिए हैं कि हाउ टू डिजाइन ए प्रोटोकॉल तक मैं जाता हूँ उसके अंदर, क्योंकि टाइम नहीं है, 2-3 घंटे लगते हैं। सर हम ट्राई करेंगे सर, आपको एक बार और अपने कॉलेज में फिजिकली भी इनवाइट करेंगे, सो दैट थोड़ा समय हमें और मिलेगा। जिनको रिसर्च करनी है अगर इस एरिया में, तो आई थिंक मैंने काफी काम किया हुआ है इस एरिया में, नेटवर्क्स में। जी सर। इवन 5G पे काम कर रहा हूँ मैं आजकल। एक पीएचडी मेरी 5G में ऑलरेडी आ चुकी है, और एक IoT विद 5G कर रहा हूँ, पीएचडी करवा रहा हूँ मैं। तो इस एरिया में तो काफी वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी कैन meet out and then we can decide. Sure, sir. Sure, Okay, sir. thank you very much, sir. Thank you all participants. Thank you very much.